Okay. So today myself Apurupa Guho. Today I have to discuss on inorganic chemistry, and that is based on Carothers examples. Okay, because most of the question that should become in CSI net along with GATE, there must be from inorganic chemistry from Carothers. Okay, and obviously in next test I will discuss all of the things from GATE also, because GATE 2026 that also be very near. Okay, so now I have to start. Okay, so already I discussed on inorganic chemistry 2 lecture. Already I discussed. So today I discuss, like as example, there must be, I give you some question. You have it some time to predict the product, and then I will solve the problems. Okay. Now I have to start. Okay. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ प्रॉब्लम देंगे. उस प्रॉब्लम को आप कुछ टाइम मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा कि आप सॉल्व करें अपना खुद का दिमाग लेकर. उसके बाद अगर ना हो तो यू कैन सी दैट इज आई विल ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑल्सो. ओके, एक ही साथ मैं क्वेश्चन दूंगा, एक ही साथ मैं सॉल्व भी करा दूंगा, बट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट. ओके, नाउ आई हैव टू स्टार्ट. देखो, एक एक प्रॉब्लम एक एक जैसा होता है, सो नेवर बी कंफ्यूज विथ ईच अदर. ओके, सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज question number 1. Okay, so this is given, there must be diketone is given. Okay, and there must be you have to use first, that is must be 2 equivalent base, any base, suppose KNH2. Okay, KNH2 along with ammonia liquid. Okay, so ammonia liquid, that means there may be possibility that is base abstraction is there, and there must be 2 equivalent, that means 2 hydrogen that should be abstracted. Okay, जब भी आप देखोगे 2 equivalent, that means आपका base 2 हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है. अगर एक इक्विवेलेंट हो, 1 इक्विवेलेंट, ऑन दैट केस यू हैव टू फॉलो दैट देयर शुड बी एनी वन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन दैट शुड बी एब्स्ट्रैक्टेड फर्स्ट. Okay. There must be some product can be there, and then you have to follow next step, that is must be C4H9Br. Okay, along with then you have to follow hydrolysis. Okay, so now what will be the product? So I will give you 30 seconds. You have to do the example in your own hand, and then I will discuss all of the mechanism. Okay, मैं mechanism करवा दूंगा, but first आपको try करना है. ओके, क्या हो सकता है? एक तो आपका 2 इक्विवेलेंट KNH2 दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है KNH3 लिक्विड के साथ, दैट मीन्स वहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है फर्स्ट वाला स्टेप में. तो कौन सा 2 आपको 2 मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. कहाँ पर आप मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन देख पा रहे हो. ठीक है, तो एज यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन शुड बी एब्स्ट्रैक्टेड फर्स्ट. ओके, एंड देन in the next step, second step, there must be given C4H9Br and along with hydrolysis H3O+. That means यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका C4H9 में अटैक हो रहा है. मतलब Br is a good living group. आप लोग जानते हो, in the top to bottom, fluorine, chlorine, bromine, iodine, there must be the living tendency that should be increases. Okay, सबसे ज़्यादा अच्छा living group होता है iodine, then bromine, then क्लोरीन एंड लास्ट वन फ्लोरीन. फ्लोरीन अच्छा तो नहीं, एकदम ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप नहीं है. ठीक है, तो कभी भी किसी भी जगह आप अगर फ्लोरीन देखो तो फ्लोरीन को एलिमिनेट करने के लिए हम सीजियम यूज़ कर सकते, सीजियम नहीं, कोई दूसरा कुछ यूज़ कर, सीजियम यूज़ कर सकते हैं, पर हम लोग ऐसे ही लिव नहीं कर सकते वो फ्लोरीन को. ठीक है, पर क्लोरीन भी लिविंग ग्रुप अच्छा खासा है, वो बाहर आ जाता है. ब्रोमीन बहुत अच्छा है और आयोडीन सबसे अच्छा है एज ए लिविंग ग्रुप. ओके, सो यू हैव टू डू इन योर ओन हैंड. तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, एंड ऑब्वियसली द फाइनल स्टेप देन
H3O plus. H3O plus, that means the final workup. If there is if there is any negative charge is there, if there is any any negative charge is there, so there should be the hydrogen abstraction is the final step of the mechanism. ओके, H3O प्लस मतलब क्या होता है, आपका हाइड्रोलाइसिस होता है, अदरवाइज लास्ट वर्कअप होता है. ठीक है, तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट. ओके, आई विल डू बाई, मैं नहीं जानती हूँ आप लोग कितना किया, सो आप लोग अब मिला सकते हो कि मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ और आप लोग का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना मैच कर रहा है. ओके, सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट विथ वाइट इंक. ओके, first one, remember there must be given two equivalent KNH2. KNH2 react as a base. Obviously it should be abstract the proton, and NH3 can also use help in, suppose यहाँ पर हो सकता है इन सिटू रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है, या फिर आपका कोई भी कैटायन के प्लस को आपका NH3 क्या इन सिटू इलेक्ट्रॉन रिएक्शन हो सकता है, या फिर आपका एमोनिया ऐसे मीडियम जैसा बिहेव कर सकता है. पर यहाँ पर आपका एमोनिया का ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी है यहाँ पर एक बेस है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड. ठीक है, दो कार्बोनिल का बीच का जो प्रोटॉन होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है. ठीक है, तो इस वाला प्रोटॉन फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है अगर एक इक्विवेलेंट बेस होता है. ओके, देयर शुड बी, इफ one equivalent base is provided, there should be this position in the active methylene, this position hydrogen should be abstracted. ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पर तो दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करा दूँ, नहीं. You can say there must be two hydrogens are there in the active methylene portion, in that portion, but there two hydrogen never be abstracted simultaneously. There only be one hydrogen should be abstracted. ओके, आप कहीं पर भी नहीं देखा डाई एनाइन प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, एक ही कार्बन के ऊपर दो डाई एनाइन, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू एब्स्ट्रैक्ट एनी वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस पोर्शन, फ्रॉम दिस सर्कल पोर्शन. ओके, एंड देन यू हैव टू फॉलो अनदर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन. जैसे आपका ये डाइकीटोन सिमेट्रिकल है, सो दैट्स आप यहाँ से भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो. तो ए वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन ए हुआ, अगर आप यहाँ से करो ए भी हो सकता है, यहाँ से करो ए भी हो सकता है. ए सेकेंड इक्विवेलेंट. देखो एक बात सोचो, आपका ऐसा एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक तो ए वाला होता है, इसका जो हाइड्रोजन होता है ए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है. ठीक है, पर आपका यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज कार्बन हैविंग टू एनायन और डाई एनायन, दैट इज नॉट स्टेबल. आप कहीं पर भी नहीं देखोगे कि कार्बन के पास दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्ज है, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो एक इक्विवेलेंट बेस का काम हो गया. नाउ यू हैव टू फॉलो द सेकेंड इक्विवेलेंट बेस वर्क, दैट इज सेकेंड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन. ओके, अब देखो सेकेंड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के टाइम आप देखो ए जो डाइकीटोन दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, वो सिमेट्रिकल है. ठीक है, तो आप इस हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, राइट, यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन है. ठीक है, कोई भी एक, इधर दिस और दिस, कोई भी एक हाइड्रोजन को आप एब्स्ट्रैक्ट करा सकते हो. ठीक है, ओके, तो आप सोचो आप क्या किया. आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन किया, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज हुआ. ठीक है, अब क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी डू. इसको ऐसे आप घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, इसको आप ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, राइट.
तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? दिस। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, अब क्या हो सकता है? ये अब यहाँ पर जो ए था यही ए हो गया, ठीक है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा बी। बी कौन सा है? अब देखो, ए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जा सकता है, ए बॉन्ड ऐसे जा सकता है, ए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो क्या होगा? यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ होगा, यहाँ पर सॉरी डबल बॉन्ड ओ नहीं होगा, ओ नेगेटिव ही रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब आपने क्या यूज़ किया? C4H9, उसके साथ एक लिविंग ग्रुप है Br। सो ए ग्रुप कार्बन को अटैक करेगा, Br निकल जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स इसके साथ क्या होगा? C4H9 होगा, ठीक है। ये 9 है, O नेगेटिव है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब आपका काम क्या है? HCO प्लस का काम। HCO प्लस का काम क्या होता है? फाइनल वर्कअप। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो दिस नेगेटिव चार्ज शुड बी गो दिस वे एंड देयर शुड बी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द HCO प्लस। ओके, तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? दिस C4H9 double bond O, double bond O, this is the product, this is B। ओके, तो यहाँ से आप दो प्रोडक्ट पाए हो, एक A और दूसरा B। ओके, क्लियर? तो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, एक आप क्या किया? एक इक्विवेलेंट बेस से आप एक्टिव मिथिलीन का जो हाइड्रोजन वो एब्स्ट्रैक्ट किया, दूसरा इक्विवेलेंट जो बेस है वहाँ से आप कोई भी एक टर्मिनल हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, बिकॉज जो डाइकीटोन दिया हुआ है वो सिमेट्रिकल है। ओके, and then you have to follow some resonance, and after resonance there must be attack on the C4H9, and Br is a good leaving group, Br group that should be eliminated, and then after that there must be the final product, there must be oxygen having negative charge is still there, so you have to neutralize the negative charge. So there must be HCO plus can be used as a workup. This oxygen negative charge delocalized and hydrogen protonation can be there. Okay, so ultimate product B will be produced. Okay, this is the simple mechanism reaction. Okay, here. Okay, next. Okay, next reaction is given. Second reaction, double bond O, CO2 First reaction is one equivalent NaH, THF, HMPA. Okay, this is product A. Then again one equivalent butyl lithium, product B, and last one there must be OTHP. Okay, Br. Okay, this is the reagent. Okay, there must be C. So what should be the product? Okay, 30 सेकेंड दिया हुआ है। देखो, एक मैं समझा देती हूँ। फर्स्ट जो स्टेप है वहाँ पर वन इक्विवेलेंट NaH, आप लोग जानते हो सोडियम हाइड्राइड, देयर मस्ट बी सोडियम हाइड्राइड कैन बी एग्जिबिट एज Na+H-, so obviously there must be, this is a ionic compound, and obviously this hydride, देखो जो Na+ है ना वो कैसे एग्जिबिट करता है? वो एग्जिबिट करता है Na++ सॉरी प्लस, ओह अरे यार ऐसे दिखाती हो Na+ एंड H-, तो H- का एक टेंडेंसी होगा कोई भी H+ के साथ जुड़कर H2 होकर रिलीज हो जाने का एक टेंडेंसी H- का होगा।
ओके, H माइनस इज नॉट स्टेबल, आप लोग जानते हो, दैट इज हाइड्रोजन स्टिल हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, 1s1, सो हाइड्रोजन ऑलवेज हैविंग टेंडेंसी either to produce H plus or to make a H minus. Okay, because in H plus there must be no electron in the 1s orbital, that is also stable, and H minus because 1 is having 2 orbital, full filled orbital, so that's why H minus also stable. But always remember, any atom having positive charge or negative charge never be stable for a long time. Okay, it always be try to neutralize first. Okay, हर वक्त याद रखना, आप जितना भी बोल सकते हो कि Na प्लस तो स्टेबल है, वाई, बिकॉज Na प्लस के अंदर तो ऑक्टेट है, Cl माइनस तो स्टेबल है, Cl माइनस का तो ऑक्टेट है, पर ऑक्टेट हो सकता है, पर Cl माइनस ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज को लेकर नहीं रहेगा, और Na प्लस ज़्यादातर टाइम पॉजिटिव चार्ज को लेकर नहीं रहेगा. इधर वो दोनों एक साथ जुड़कर कोई भी आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, और कोई भी अनदर कोई भी अपोजिट चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज होगा. यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह वो दोनों आयन को न्यूट्रलाइज होना ही है. ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज नेवर बी स्टेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम एज ए आइसोलेटेड पोजिशन. ओके, आइसोलेटेड ऐसे ऐसे कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा. ठीक है, आपका ए हो सकता है वो कहीं भी किसी भी जगह सॉल्वेटेड है, ऐसा हो सकता है कोई भी दूसरा आयन की वजह से वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू वो स्टेबल है, कोई आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस किया है, ये सब हो सकता है, सॉल्ट प्रोड्यूस किया है, पर वो अकेला अकेला कोई ऐसे ही नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को लेकर बियर नहीं कर सकता. ओके, रिमेंबर दैट. सो H माइनस जो है उसका एक टेंडेंसी होता है Na प्लस के साथ स्टेबलाइज होना. ठीक है, पर H माइनस का उससे भी ज़्यादा टेंडेंसी होता है कोई भी किसी भी जगह से वो H प्लस को लेकर H2 होकर बाहर आ जाना. ओके, वाई, बिकॉज यहाँ पर दो ड्राइविंग फोर्स है. एक तो आपका H2 गैस रिलीज हो रहा है, because H2 gas release, so there must be, you remember that is entropy of gas is maximum than the solid and liquid, right? So that's why entropy increases. When entropy increases, there must be del G having the possibility to be more negative. Okay, जब भी किसी भी प्रोसेस में आप देखोगे एंट्रोपी बढ़ रहा है, दैट मीन्स द रिएक्शन मे बी एंट्रोपिकली मोर फेवरेबल. ओके, ये एक है. दूसरा बात है वन इक्विवेलेंट. आप देखो HNPA जो है, HNPA कुछ नहीं, वो आपको क्या कर रहा है, जो CO2 ET और कार्बोनिल का जो बीच में जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है, राइट. आपको अगर ऐसे ही वन इक्विवेलेंट NH प्रोवाइड किया जाए तो आप ए वाला हाइड्रोजन आप एब्स्ट्रैक्ट करोगे, राइट. पर HNPA के वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है. कहाँ पर हो रहा है, दिस हाइड्रोजन, दिस पोजीशन में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर नहीं हो रहा है HMPA के वजह से. ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप आई डिस्कस. नेक्स्ट स्टेप, वन इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम, दैट इज नथिंग बट दैट इज ए बिहेव एज बेस एंड वन इक्विवेलेंट गिवन, सो वन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन शुड बी देयर. ओके, एंड इन द लास्ट स्टेप there must be the Br is a good living group, it always try to be live, and obviously there must be attack can be there in that position. Okay, so मैंने all the summary I will give, so now you can do in your own hand. आप कर सकते हो. Okay, it's very easy. Okay, now I have to start. देखो मैं यहाँ पर देखो, मैं जितना जितना करूँगा आप पॉइंट आउट करते करते जाओ. ठीक है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो दैट मीन्स देयर शुड बी नेगेटिव चार्ज. क्यों हुआ, HMPA के वजह से. आपका ये हाइड्रोजन एसिडिक है पर यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा. वाई, बिकॉज ऑफ सिलेक्टिविटी ऑफ HMPA. ओके, क्लियर. उसके साथ क्या होगा, वन इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम. ओके, उसका काम क्या होगा, देखो उसका काम कैथर्स जो बुक है वहाँ पर मेंशन नहीं किया, वो बाद में आएगा. ठीक है, ये जो बात है ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर ही कर रहा है. कहीं भी देखो NaH तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन किया, आई थिंक ये जो वाला ये नहीं होगा. ठीक है, आई विल नॉट श्योर बट आई थिंक नहीं होगा. ठीक है, सो नाउ दैट इज OTHP. ओके, दिस Br इज़ अ गुड लिविंग. आपको आप ये बोल सकते हो OTHP क्यों नहीं निकल जाएगा.
आपका OTF तो निकल जाता है, टॉसाइलेट ग्रुप निकल जाता है, मोसाइलेट ग्रुप निकल जाता है, OMEM ग्रुप निकल जाता है। देखो ये जो THP मतलब होता है आपका दिस ए बिगर ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड THP, पर इसका लिविंग टेंडेंसी Br से कम होता है। Br ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जिसका आप जब लिविंग ग्रुप होगा ना तो एक कंपटीशन होगा, किसका लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है। जो अच्छा खासा लिविंग ग्रुप होता है वो पहले बाहर आ जाता है, जो थोड़ा कम होता है वो लास्ट में बाहर हो जाता है, राइट। एज फॉर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSI and फॉर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, तो यू एंड योर friend both having the same preparation, and you and your friend, in between of you and your friend there must be high competition is there, but whose performance is much better, whose score is much better, he or she will come first to select it, okay, and then the low scorer will be selected, right। तो जब भी कोई इंटरव्यू, जब भी कोई कुछ में होता है, सिलेक्शन होता है, या फिर आप बोलो कि आपका कट ऑफ जो होता है वहाँ पर जो पहले जिसका नंबर ज़्यादा होता है वो तो कट ऑफ से ज़्यादा होता है वो सिलेक्टेड हो जाता है, जिसका कट ऑफ से कम होता है वो सिलेक्टेड नहीं होता है, वो पास आउट नहीं होता है। तो ये जो चीज़ होता है कॉम्पिटिशन जितना भी हो वहाँ पर एक कम एक ज़्यादा दो चीज़ होता है, राइट, ओके। Clear. Now, so there must be this negative charge can be, okay, ये अलग से दिखाती हूँ, this negative charge will be this way and Br that should be leave, okay। यहाँ से क्या होगा, this OTHP बॉन्डो OET, ओके। अब देखो यहाँ पर खींचो, यहाँ पर कितना है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो कार्बन है यही यहाँ पर है, देखो देखो देखो, एक तो यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इतना कार्बन है, ओके ओके। नाउ व्हाट शुड बी डू, एक देखो यहाँ पर इसका ना वैलिडिटी हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में हो सकता है, क्योंकि आपका ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पर एक बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और N ब्यूटेन की तरह बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो मैंने कटा दिया ये हो सकता है, इस स्टेप में हो सकता है, ठीक है, N ब्यूटाइल लिथियम हो सकता है, ठीक है। तो N ब्यूटेन की तरह बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा दूसरा OET बाहर आ जाएगा, ओके। होने के बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्या हो रहा है भाई, डबल बॉन्ड O, सॉरी, और दिस प्रोडक्ट शुड बी देयर, ओके। तो आपका A एक प्रोडक्ट हुआ, आपका B एक प्रोडक्ट हुआ, ओके। इसके बाद हम लोग को क्या जानना है, ए B हो गया, B भी नहीं हुआ, ए C बोलो, आपका ए ना कटा दो, ए आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है स्टेप 2 में, ठीक है। तो ए वाला प्रोडक्ट हुआ है, B वाला अल्टीमेट, तो B के बाद भी और भी कुछ रिएक्शन होगा, ओके, हो सकता है, कैसे वो हम दिखाते हैं, ओके। तो बी वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यही बी वाला एग्जाम बी वाला ही होगा, करेक्ट, ठीक है। तो इस जो आपका बी वाला जो प्रोडक्ट है यही आपका बी वाला ही प्रोडक्ट इस आपका सी वाला प्रोडक्ट होगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ठीक है।
ओके यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो स्टेप 2 है, वो स्टेप 2 एक्चुअली यहाँ पर नॉट वर्किंग, if working but in a wrong step. Okay, so remember that this is the A product and this is B and this is can be C. ओके जब भी आप रिएक्शन में करोगे आपका CSIR नेट में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। अगर आए तो रिमेंबर दैट वो जो गलत क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो रिमेंबर दैट वहाँ पर आपका खुद का एक प्रॉब्लम नहीं होगा, सबका प्रॉब्लम होगा। तो NTA जो भी फैसला ले वैसा ही आपका आंसर की भी आएगा, और आई थिंक चैलेंज का भी ऑप्शन आता है, तो बहुत कुछ प्रोसीजर होगा। पर एक बात तो अच्छा है कि आपका खुद का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सबका प्रॉब्लम होगा, सब कैंडिडेट का ही एक ही प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन अगर गलत आ जाए, ठीक है। पर आप अगर गलत हो तो ऑन दैट केस द प्रॉब्लम शुड बी योर्स, ओके, नॉट अदर्स। ओके सो पर आप एक बात देखो, मैं एक फर्दर कुछ रिएक्शन करवा देती हूँ आपको। जो यहाँ पर मैंने लास्ट वाला जो प्रोडक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे भी बहुत और कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पर आप LDA यूज़ कर सकते हो। LDA इज ए टाइप ऑफ बेस, तो दैट शुड बी यूज टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। Which proton? This proton. Because यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेशन में आएगा, राइट। तो क्या होगा, डबल बॉन्डो नेगेटिव चार्ज और this, okay. Now this negative charge also be delocalized, okay, so that's why stable। पर आपको delocalize दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ दैट इज C6H5 सेलेनियम एंड Br, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन के साथ सेलेनियम बाइंड हो सकता है, एक कार्बन के साथ सेलेनियम बाइंड हो सकता है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। पर आप कभी भी देखा हो कि ऑक्सीजन सेलेनियम दैट शुड बी बाइंडेड टू ईच अदर? नो, carbon and selenium can be bind to each other in many reaction, but oxygen never be bind with selenium, okay, remember that। आप जो चीज़ कभी भी नहीं देखा, कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी बुक में नहीं देखा वो चीज़ ज़्यादातर केस में नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? ऑक्सीजन एंड सेलेनियम का आई थिंक वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का एक बात होता है, बॉन्ड एनर्जी का एक बात होता है, बॉन्ड लेंथ का एक बात होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन एंड सेलेनियम बॉन्ड इज नॉट सो स्टेबल, बट कार्बन एंड सेलेनियम इज स्टेबल इनफ, ओके ओके। So this negative charge can be attack on selenium and Br that should be leave. Br is a good living group. Okay. तो अब क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड O था, यहाँ पर सेलेनियम एंड उसके साथ PH था जो C6H5 that can also be written as PH. This C6H5 can be written as PH. O this. Okay. Now you have to introduce H2O2. Okay, hydrogen peroxide. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट शुड बी यूज्ड इन इपॉक्सीडेशन ऑब्वियसली, बट यहाँ पर इपॉक्सीडेशन होने का चांस नहीं है, ओके। तो व्हाट शुड बी डन, दैट इज देयर शुड बी ऑक्सीडेशन कैन बी देयर, ओके। कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो सकता है? सेलेनियम का ऑक्सीडेशन हो सकता है, बिकॉज सेलेनियम इटसेल्फ कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू सेलेन ऑक्साइड, ओके। जैसे सल्फर से सल्फोक्साइड होता है, सेलेनियम से सिलोक्साइड हो सकता है। So there should be O, there must be O, that is this and this and double bond O. Okay, then sorry. Selenium, pH along with some double bond can be there. Double bond कहाँ पर दिखाते हैं? यहाँ पर दिखा देते हैं, double bond है। So now there must be some elimination can be possible. सो एलिमिनेशन कैसे होता है? आपका CH2Cl2 दे दो तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, ठीक है। क्या होगा? एलिमिनेशन। कैसे होगा? जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आएगा और सेलेनियम बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? दिस डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड, देयर मस्ट बी डबल बॉन्ड, oxygen, this is the product,
ओके, और भी अच्छे से लिखते हैं, दिस this this डबल बॉन्ड, दैट इज द प्रोडक्ट। ओ यहाँ पर तो डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज द प्रोडक्ट। ओके क्लियर? ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ये आप लिख दो, उसके बाद मैं प्रोसीड करती हूँ, ठीक है? ओके नेक्स्ट, next question, third question you have to follow. There was a simple, this NO2 is there, and simple reaction, first one, two equivalent butyl lithium can be used, that is A, and then C6H5, that is pH simply, and CH2 means benzyl, okay, Br, so that should be B product। अगर सिर्फ C6H5 हो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल रिंग, पीएच। अगर C6H5CH2 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल, बेंजाइल, BZ आई थिंक, ओके ओके। सो नाउ यू हैव ए 30 सेकेंड, सो प्लीज यू कैन डू। देखो, एक होता है दो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम है, दैट मीन्स यहाँ पर दो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कोई भी एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होकर दूसरा कोई नेगेटिव चार्ज को लिथियम स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक केस हो सकता है आपका जो नेगेटिव चार्ज या फिर कोई भी जो ए प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ सिस्टम होगा जिसकी वजह से आपका C6H5CH2 वहाँ पर अटैक होगा, ओके, अटैक होकर Br बाहर आ जाएगा, ओके। आई रिपीट इन इंग्लिश, that is there must be in the first compound, that is nitro compound, there should be hydrogen abstraction is there, maybe two hydrogen abstraction can be there, or otherwise one hydrogen abstracted and then that another negative charge should be stabilized by lithium plus, okay, that can be happen, ओके। इंटरनली क्या क्या हो रहा है हमको पता नहीं है, रिएक्शन वेसल में क्या हो रहा है, सो हम लोग जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं वो पॉसिबल मैकेनिज्म होता है, हम थियोरेटिकली जो बोलेंगे वैसा प्रैक्टिकली नहीं होगा, और केमिस्ट्री ज़्यादातर केस में प्रैक्टिकल को डिपेंड करता है, डिपेंड होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में जो होता है उससे ही आपका केमिस्ट्री होना है, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा अच्छा खासा डिफरेंस है देन अदर सब्जेक्ट टू केमिस्ट्री, ओके। एंड देन जो आपका ए प्रोडक्ट होगा वो ए प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी भी कोई भी जगह होगा जहाँ से आपका वो C6H5CH2 में अटैक होगा, ओके। Remember, the first one, there must be nitro compound is there. There must be either two hydrogen abstraction can be possible, otherwise one hydrogen abstraction and other negative charge should be stabilized by lithium, okay. And then there must be a compound can be produced, and in a compound there should be some setup will be there by which way there must be C6H5 CH2 should be attacked and Br will be eliminated first, okay. So what should be the product? Are you guess? ओके, आई विल डू। देखो, एक बात होता है, इसको हम खुल के लिखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेसिक फंडामेंटल थिंग होता है, जब भी कोई कंपाउंड आप देखोगे वो खुल कर लिखो। व्हेन यू डन ओपन स्ट्रक्चर देयर मस्ट बी सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड एंड सो मेनी आइडियाज दैट शुड बी कम इन योर माइंड, ओके, अदरवाइज मेनी रॉन्ग mechanism can be done by you, okay. So that should be exhibit in that way, okay. This is nothing but this is the first compound, okay. So suppose there must be one equivalent base first use, suppose मैंने डायरेक्ट दो इक्विवेलेंट बेस नहीं यूज़ किया, वन इक्विवेलेंट बेस यूज़ किया, तो there must be this hydrogen that should be abstracted by the base, and there must be this and there must be this should be there, okay, okay. So what should be produced? NO negative, that should be stabilized by another lithium plus, O negative, and that should be stabilized by another lithium plus, by which way two equivalent butyl lithium are used, okay. Now this is the A, okay.
this O negative charge that should be goes this way, and there must be negative charge can be there, and this negative charge should be react on this CH2 and Br, that should be eliminate. Okay, so what should be produced? N positive, double bond O negative. Okay, CH2 and along with pH, that is the product B. Okay, तो ऐसे आपका प्रोडक्ट B होता है, प्रोडक्ट A होता है. Okay, clear? I think clear. Very simple reaction this is. Okay, next reaction. कितना है? ठीक है, 1 घंटा तक कर देते हैं, उसके बाद ऑफ कर देंगे. ठीक है. 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 question. That is must be given this, and there must be this, there must be hydrogen above the edge, that means above the plane, and that is below the edge, that is below the plane. This is cyclic, what? This is cyclic anhydride, that is called lactone. और cyclic amide को क्या बोलते हैं? lactam. ओके, तो इसको हम ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, तो देन देयर मस्ट बी, यू हैव टू यूज फर्स्ट वन Cl CH2 SPH with ZnBr2 zinc Br2 along with methylene chloride. ओके, सेकेंड जो दिया हुआ है वहाँ पर NaIO4, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करता है along with 0 degree centigrade, very low temperature. थर्ड वन CCl4, but along with high temperature 80 degree centigrade, that maybe there must be some elimination can be there. ठीक है, तो एक स्टेप है जो Cl CH2 SPH ZnBr2. देखो जो Cl CH2 HPH है वहाँ पर Cl है, Cl ऐसे गुड लिविंग ग्रुप, Cl बाहर आ जाएगा और आपका CH2 PH में अटैक होगा. ठीक है. सेकेंड जो स्टेप है NaIO4, वहाँ पर कोई ना कोई जगह में आपका ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है. और लास्ट वाला जो स्टेप है CCl4 80 डिग्री सेंटीग्रेड, CCl4 यूज हुआ है एज ए इनर्ट सॉल्वेंट, बट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स देयर शुड बी सम एलिमिनेशन कैन बी देयर. ओके, सो व्हाट शुड बी प्रोडक्ट आर यू थिंक? ओके, ये सब कैर्थर्स का है, मैं जितना पॉसिबल हुआ उतना किया है. ठीक है, आप देखोगे वहाँ पर बहुत एग्जाम्पल है, सिर्फ कैर्थर्स नहीं, और भी ज़्यादा, और भी कुछ अदर बुक्स भी मैंने देखा है, वहाँ से भी लिया है. ठीक है, पर क्या होता है 1 घंटा में ज़्यादा नहीं होता है, तो जितना हो सके मैं करवा दूँगा आज. ठीक है, सो देखो आई विल डू, यहाँ से तो कुछ भी नहीं देखोगे, यहाँ से देखते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल ऐसा एक मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज जाकर यहाँ पर अटैक करेगा और Cl बाहर आ जाएगा. देखा, यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो जाकर CH2 का अटैक करेगा और Cl बाहर आ जाएगा. ओके, हाइड्रोजन ओ double bond. Okay, there must be some CH2 SPH, ए वाला प्रोडक्ट हो गया. अब हम क्या यूज़ करेंगे? NaIO4. ओके, तो NaIO4 दैट शुड बी यूज टू ऑक्सीडेशन. तो व्हाट शुड बी प्रोडक्ट? हाइड्रोजन double bond O, double bond O, S double bond O, यहाँ पर पॉजिटिव एंड pH. ठीक है, नाउ यू हैव टू यूज 80 डिग्री सेंटीग्रेड. 80 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा? जो हाइड्रोजन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट होगा, ऐसे बॉन्ड जाएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा,
यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और ऐसे बॉन्ड एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आपका एस डबल बॉन्ड पीएच बाहर आ जाएगा, ठीक है। तब क्या प्रोड्यूस होगा, लास्ट वाला प्रोडक्ट दिस एच यहाँ पर एच है, ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट ओके। नेक्स्ट वन याद रखना, आपका कोई भी ऐसा सिस्टम दे दिया जाए O80, रिमेंबर दैट आपका दो केस में आप LDA यूज़ किए हो, यहाँ पर भी LDA, यहाँ पर भी LDA। LDA का काम क्या है, बेस एब्स्ट्रैक्ट करना, और बेस एब्स्ट्रैक्ट करके क्या होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। पर यहाँ पर ट्विस्ट है, कौन सा ट्विस्ट, यहाँ पर भी आपका Me3SiCl यूज़ होगा, यहाँ पर भी Me3SiCl यूज़ होगा। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर आपका HMPA होगा along with THF, यहाँ पर भी THF होगा पर HMPA नहीं होगा, ओके। एक with the presence of HMPA and other without the presence of HMPA, तो what should be the product। तो देखो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज होगा, वो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा, और वो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आपका क्या करेगा, इस SI को अटैक करेगा और Cl बाहर आ जाएगा, ठीक है। इन बोथ ऑफ द केसेस दैट शुड बी देयर, बट before in going this mechanism there must be maybe chance of single bond rotation, like this single bond rotation can be possible, okay. And this single bond rotation possible in that case, so that's why there must be this bond can be go up, there must be OSI Me3 and there must be OET and double bond, okay. So that is a Z isomer. Why Z isomer? Because this is a bigger group, this is a bigger group, these two bigger group, when bigger group are present in same site, that is called Z isomer, okay. And when the bigger group are present in the opposite, that is called E isomer, okay. So that is a Z isomer, okay. So what should be the Z and EZ ratio here produced, that is must be 0 to 100. 100% Z isomer can be produced here, okay, when you introduce HMPA, okay. पर यहाँ पर कोई भी सिंगल बॉन्ड रोटेशन नहीं होगा, नो सिंगल बॉन्ड रोटेशन, okay. तो what should be the product, this same as it way, O के क्या होगा, इसको हम ट्राइमिथल सिलाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, तो इसलिए हम इसको TMS भी बोल सकते हैं। जैसे आप SiMe3 यूज़ कर सकते हो, वैसे TMS भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ट्राइमिथल सिलाइल क्लोराइड, TMSCl, ओके, बॉन्ड Cl, ओके, ये हम बोल सकते हैं। और उसके साथ क्या होगा, OET होगा और डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा, EZ रेशियो E ज़्यादा होगा, EZ रेशियो E ज़्यादा होगा, 85 होगा और 15 होगा। अब देखो, अब देखकर बोलो तो कौन सा स्टीरियो पैसिफिक और कौन सा स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। पिंक वाला स्टीरियो पैसिफिक है या स्टीरियो सिलेक्टिव है, और येलो वाला स्टीरियो पैसिफिक है या स्टीरियो सिलेक्टिव है। देखो, with presence of HMPA, without presence of HMPA, the reaction will be स्टीरियो पैसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो पैसिफिक मतलब क्या होता है, 100% one product that should be produced. Stereopacific means that is 100% only one product that should be produced. And stereoselective, that means there must be two or many products that should be produced, but one major, other minor. Okay. So remember that
रिमेंबर दैट दिस इज मोस्ट ऑफन देखकर लग रहा है स्टीरियोपेसिफिक। ओके, अगर और दूसरा प्रोडक्ट हो जाए और मेजर माइनर हो जाए तो तब क्या हम बोल सकते हैं, स्टीरियोपेसिफिक को हम तब स्टीरियो सिलेक्टिव बोलेंगे जब मेजर माइनर चीज आएगा। और जब 100% प्रोड्यूस होगा कोई भी एक प्रोडक्ट, ऑन दैट पर्पस वी हैव टू से दिस इज अ स्टीरियोपेसिफिक रिएक्शन। ओके, एंड दैट शुड बी स्टीरियो सिलेक्टिव। Why stereo selective? Because this is a major M and this is a minor N. Okay, clear? I think clear. Next one. देख लो एक बार. Okay. Next reaction. There must be hydrogen above the plane, below the plane hydrogen. This and double bond O. Okay. So first one you have to use potassium tard butoxide. Okay, and tard butanol. That is the first product. Suppose A. Okay, and there must be N normal C4H9 along with I, that is a product B. So what should be the product A and B? Okay, first one potassium tert-butoxide, there must be obviously some proton abstraction can be there, and then after that there must be some attack on NC4H9 and iodine is a good leaving group, iodine should be eliminated. Okay, that is the main fundamental thing of the reaction. Okay, तो करवा देते हैं, ठीक है, करवा देते हैं. देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको आपका जो बेस है, जो भी बेस आप यूज़ किया हो, यहाँ पर तो बेस ए है, तो ए वाला बेस हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ऐसे. ओके, बाहर आ गया, क्या होगा, दिस डबल बॉन्ड O negative. Okay, and above the plane H, below the plane H, this. Okay, so this negative charge this way and this way can be attack on NC4H9. Actually this carbon को अटैक करता है, N को नहीं. N इसको अटैक करता है NC4H9 और आयोडीन बाहर आ जाता है. तो ए वाला ए है, तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका NC4H9. ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा बिलो द प्लेन H, अबव द प्लेन H, दूसरा एक ग्रीन होगा. दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट. पर एक होल चीज़ आपका चेंज हो जाएगा. कब हो जाएगा, जब आप NH3 यूज़ करोगे. तो NH3 में क्या होता है, जब भी NH3 होता है वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है. तो जैसा आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वैसा नहीं होता है, कुछ चेंज हो जाता है. ओके, सो व्हाट शुड बी द चेंजेस. ये जो ए वाला मैंने रिएक्शन किया, अच्छे से देख लो, अच्छे से घुमा घुमा के देख लो क्या हो रहा है. अब देखोगे हम NH3 वाला क्या करेंगे, ठीक है. देखो जब आप NH3 यूज़ करोगे ना, along with there must be tert butanol along with NH3 लिक्विड यूज़ करोगे, तब क्या होगा, यहाँ पर ए वाला प्रोटॉन यूज़ होगा, सॉरी, ठीक है. ओके, अब देखो क्या चेंज हुआ, यहाँ पर क्या था, ओके ओके, यहाँ पर ऐसा हुआ,
हाँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड O था, ठीक है। ए वाला चीज़ देखो, यहाँ पर क्या चेंज होगा, ए जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर ए वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली दिस, ओके। पर जब आप NH3 यूज़ करोगे, जब NH3 यूज़ करोगे, ऑन दैट पर्सपेक्टिव क्या होगा, आपका ए वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो ए वाला ग्रुप यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा C4H9, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मैं फ्रेशली कर देती हूँ। देखो, एक आपका ठीक है हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड O दिस। नाउ देखो, एक आप पोटाशियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड यूज़ कर रहे हो और ओनली टार्ट ब्यूटानॉल यूज़ कर रहे हो, तो आपका कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ऐसा, दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर O नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये ए वाला प्रोडक्ट है। और जब NC4H9 Br आएगा तब क्या होगा, व्हाट शुड बी प्रोडक्ट, ऐसे आएगा और यहाँ से आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नेगेटिव चार्ज से आपका यहाँ पर रिएक्शन होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो दिस Br बाहर आ जाएगा, मतलब क्या होगा, NC4H9 डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला बी प्रोडक्ट होगा। और जब आप यूज़ करोगे टार्ट ब्यूटॉक्स, पोटाशियम टार्ट ब्यूटॉक्साइड, टार्ट ब्यूटानॉल, अमोनिया लिक्विड, तब क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O what should be product, this, okay, okay। तब क्या होगा, दिस O नेगेटिव, ओके। देन अगेन वहाँ आ जाएगा NC4H9 एंड Br बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या प्रोडक्ट होगा, दिस यहाँ पर होगा NC4H9, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ऐसा प्रोडक्ट आपका आएगा। C4 ग्रुप यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दिस शुड बी द बी प्रोडक्ट, ओके, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिएक्शन, suppose there must be in butyl को लेते हैं हम, व्हाट शुड बी कॉल्ड, दिस इज गिलमैन रिएजेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R2Cu लिथियम, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर आर मीन्स यहाँ पर आर बोलकर आपको इन ब्यूटल दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, ओके। एंड लो टेम्परेचर THF -78 degree centigrade, that is the A, and then excess methyl iodide can be used along with THF, and then HMPA and B product can be produced. So what should be the product? देखो,
क्या होगा, R2C लिथियम दैट इज एन ब्यूटाइल लिथियम जो होगा वो, देखो हम खुल कर लिखते हैं, ठीक है, वो भी एन ब्यूटाइल Cu एन ब्यूटाइल, ओके, एक लिथियम प्लस, ऐसा आप सोच लो, ऐसा आर्बिटरी स्ट्रक्चर है, ए एन ब्यूटाइल ग्रुप 1,4 एडिशन होगा, ठीक है। 1,4 किसको हम बोलते हैं, डबल बॉन्ड एंड ऑल्सो सिंगल बॉन्ड, एंड वहाँ पर एक, तो जब भी कोई अटैक यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर जब होगा तब आप इसको आप बोलेंगे 1,2 एडिशन, जब यहाँ पर होगा उसको हम बोलते हैं 1,4 एडिशन। एंड ऑलवेज रिमेंबर 1,2 एडिशन कौन करता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, कोई भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल करता है, ठीक है, और 1,4 एडिशन कोई भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल करता है। और कॉपर हर वक्त सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जो भी आपका मैग्नीशियम होता है ना, जो गिग्नार्ड रिएजेंट, वो गिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, और लिथियम जो ब्यूटाइल लिथियम बोलो, आपका एलडीए बोलो, वो ज़्यादातर केस में हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो लिथियम मैग्नीशियम दे बिहेव लाइक हार्ड, एंड कॉपर ऑलवेज मोस्ट ऑफ द केसेस बिहेव लाइक सॉफ्ट, ओके। सो जब भी आपका गिलमैन रिएजेंट या फिर R2Cu लिथियम व्हेन रिएक्ट, दैट शुड बी रिएक्ट ऑलवेज फ्रॉम 1,4 एडिशन, दैट मीन्स ओनली रिएक्ट ऑन द डबल बॉन्ड ऑफ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल नहीं बोलते ना, एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ओ है कॉन्जुगेटेड जगह, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज द कार्बोनिल एंड दैट इज ए पोजीशन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा पोजीशन में अनसैचुरेटेड है, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तो हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं, तो अल्फा बीटा पोजीशन में अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू से दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, क्लियर आई थिंक। Okay, now so this bond should be this way, oh, this bond go this way and this bond go this way. So what should be product, what should be product should be this double bond O negative, and that is N butyl, that is a, okay. Now that bond go that way एंड देयर मस्ट बी एक्सेस मिथाइल, तो मिथाइल को अटैक करेगा, आयोडीन बाहर आ जाएगा। तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, आपका अगर एन ब्यूटाइल अबव द प्लेन में अटैक किया, आपका अगर एन ब्यूटाइल अबव द प्लेन अटैक किया, तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर तो डबल बॉन्ड होगा, तो आपका अगर एन ब्यूटाइल अबव द प्लेन अटैक किया तो वो मिथाइल आपका यहाँ पर बिलो द प्लेन होगा। ऑलवेज रिमेंबर ए जो ग्रुप होगा और ए जो ग्रुप होगा वो एंटी होगा, एक अबव एक बिलो, बिकॉज जो पहले अटैक किया वो अगर अबव द प्लेन अटैक किया, उसके बाद जो अटैक होगा वो अबव द प्लेन नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। कहाँ पर अटैक होगा, बिलो द प्लेन अटैक होगा। अगर एन ब्यूटाइल बिलो द प्लेन होता तो मिथाइल क्या होता, अबव द प्लेन होता, okay. So always remember the n-butyl group and methyl group always be in that purpose anti to each other, because the first group when attacked in the above side, so obviously the second group attacked from the below the side, okay. If the first group attack on the below the side, the next attacking group should be attached with the above the side, okay. So this is the B, this is the ultimate product, clear, okay. Okay, next last question. Last question. pH. Okay. This pH. Come. Me2Cu lithium. Okay. What should be the product, and then pH SCBr should be the product, and then O2 and CH2Cl2, that is the product. So what should be the product, that should be there. First one Me2Cu lithium क्या करेगा, आपका 1,4 एडिशन करेगा, that is called Gilman reagent. Already I discussed in the previous क्वेश्चन। PSACBr, तो आपको जाहिर सा बात है, वेरी यूजुअल वे, दैट इज दिस Br ग्रुप दैट शुड बी एलिमिनेटेड एंड देयर शुड बी सम अटैक ऑन द AC ग्रुप,
Okay, and last one, H2O2 can be used as a oxidizing agent, can be oxidize some group and then CH2Cl2 used to eliminate. Okay, so what should be the product? Okay, देखो, there must be the methyl can be this way written. Okay, एक methyl आएगा in that side, 1,4 addition this side, and this O negative can be produced. So what is the product? This, and there must be methyl, O negative, this, and there must be pH. Okay, this is the first product. Okay, if अगर A हो तो A होगा. Okay, clear. नेक्स्ट वन, ए अगर बी हो तो बी से क्या होगा, ए ओ नेगेटिव ऐसे होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, राइट. इस नेगेटिव चार्ज को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ए जो नेगेटिव चार्ज होगा ए किससे अटैक करेगा, ए एसी से अटैक करेगा और बाहर निकल जाएगा, राइट. तो क्या होगा, एसी बीआर, एसी पीएच. ओके, और डबल बॉन्ड O एंड पीएच, ये प्रोडक्ट होगा बी. ओके, इसके बाद क्या होगा, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, बोलो. H2O2, H2O2 ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडेशन. क्या ऑक्सीडाइज करेगा, ये एसी को डबल बॉन्ड O पीएच बना देगा. अब CH2Cl2 क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा. कैसे करेगा, बोलो. यहाँ पर एक हाइड्रोजन है वाला ऐसे जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, दिस डबल बॉन्ड O पीएच. इसको हम रेड से भी इंडिकेट कर सकते हैं क्योंकि एक ही जैसा कलर है ना. तो डबल बॉन्ड O पीएच, this is the C product. Okay, so by this way you get A, B, C, and this is a B product, B product, C product and A product. Okay, तो ऐसे आपका इनोलेट केमिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया. नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस आइदर इनोलेट केमिस्ट्री और फ्रॉम द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, more or less from Carothers and Claydon and other standard books, because this type of question genuinely asked in the CSNA, WBSET, GATE type of exam. Not only that, in many interview PGT exams. Okay, so you can practice all of this. Okay, and last one I also carry with bio-inorganic chemistry. Okay, next day also parallelly, because आपका bio-inorganic chemistry का ज़्यादा lecture मैंने नहीं किया है I think, so that's why I have to do on bio-inorganic chemistry, because bio-inorganic chemistry, MOSBA, स्पेक्ट्रा, EPR स्पेक्ट्रा, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है. So I have to do step by step. Okay, thank you, and please subscribe and also like, share, comment, and subscribe on Upper Chemistry YouTube channel. And not only that, in Upper Chemistry already 2 Facebook group also there. Okay, you can visit, and also Apurupa Guho Education Consultant, one Facebook profile is also there. And not only that, in Upper Chemistry Instagram is there, you can like on it, on this, and Upper Chemistry thread also there, so you can anywhere. And not only that, I having my personal WhatsApp group and WhatsApp channel also there on the basis on chemistry classes. Okay, so you can knock me in the comment section, I will provide you the channel link. Okay, you can go to the channel link and also follow the link, and may also I will help on you. Okay, so thank you so much. Thank you.